Hi friends, let's see few questions on automatic signal system. Question number 1. When gate signal in automatic signaling territory not interlocked with home or LSS is at on and A marker is illuminated means option A, automatic signal is on. Option B, gate is closed and automatic section is occupied. Option C, gate is open and automatic section is occupied. Gate is in open position. इस क्वेश्चन का मीनिंग है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी में ये मार्कर इल्यूमिनेटेड, ये मार्कर ग्लोइंग है, ये मार्कर जल रहा है एंड सिग्नल ऑन में है, तो उसका मतलब है गेट इज क्लोज्ड एंड ऑटोमेटिक सेक्शन इज ऑक्यूपाइड. ओके, ऑप्शन बी, गेट इज क्लोज्ड एंड ऑटोमेटिक सेक्शन ऑक्यूपाइड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन द गेट सिग्नल नॉट इंटरलॉक्ड विथ होम और LSS शोइंग डेंजर एस्पेक्ट विथ एक्सटिंग्विश्ड ए मार्कर. एक्सटिंग्विश्ड का मतलब है वो नहीं जल रहा है, बुझा हुआ है. एक्सटिंग्विश्ड ए मार्कर मीन्स ऑप्शन ए, गेट इज ओपन एंड ऑटोमेटिक सेक्शन इज ऑक्यूपाइड. ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक सिग्नल इज ऑन. ऑप्शन सी, गेट इज इन ओपन पोजिशन. ऑप्शन डी, गेट इज क्लोज्ड. ओके, डेंजर एस्पेक्ट शो कर रहा है, ये मार्कर भी नहीं जल रहा है, तो उसका मतलब है गेट ओपन है एंड ऑटोमेटिक सेक्शन ऑक्यूपाइड है. So option A, gate is in open is the right answer and automatic section is also occupied. Option A is the right answer. Question number 3. In automatic signaling territory, when a semi-automatic stop signal is required to protect a level crossing gate in addition to points, the signal shall be provided with an dash and in addition to the dash against black background. Option A, illuminated AG marker and illuminated A marker. Option B, G marker. ऑप्शन सी, ओनली इल्यूमिनेटेड एजी मार्कर. ऑप्शन डी, ओनली इल्यूमिनेटेड ए मार्कर. अगर सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पॉइंट्स भी प्रोटेक्ट कर रहा है तो इल्यूमिनेटेड एजी मार्कर रहना और इल्यूमिनेटेड ए मार्कर दोनों, ए मार्कर और एजी मार्कर दोनों प्रोवाइड किया जाता है. सो ऑप्शन ए, इल्यूमिनेटेड एजी मार्कर एंड इल्यूमिनेटेड ए मार्कर इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. एज पर अमेंडमेंट स्लिप नंबर 15 of JNSR 2020, the indication of such signal when the level crossing gate is closed and locked against road traffic and points where existing or correctly set for main line and locked for the route dash shall be lit. Lit means, lit का मतलब है glowing. Okay. Option A, only A marker. Option B, AG marker. Both A and AG marker. Option D, only G marker. Okay. When the level crossing gate is closed, gate close किया गया है and locked against road traffic. Okay. And points where existing are correctly set. Gate close है, points correctly set for main line है. Okay, main line and locked for the route dash shall be lit. When the level crossing gate is closed and locked against road traffic and points where existing are correctly set for main line and locked for the route dash shall be lit. Lit means glowing. इस दौरान only A marker should be glow होना चाहिए. Already शेल बी ग्लोइंग बोल के दिया है, तो एक ही लाइट ग्लो होना बोले तो ओनली ए मार्कर ग्लो होना चाहिए. ओनली ए मार्कर. ए मार्कर भी क्यों ग्लो होता है बोले तो आगे सेक्शन ऑक्यूपाइड है तो ओनली ए मार्कर ग्लो होता है. इधर ऑलरेडी लिट बोल के दिया है ना, इसका मतलब है ऑलरेडी ग्लोइंग है. सो ऑलरेडी पॉइंट्स भी सेट है तो एजी मार्कर नहीं ग्लो नहीं होता. सो ओनली ए मार्कर ग्लो होने का चांस है, इसलिए ओनली ए मार्कर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Okay, next question, question number 5. As per amendment slip number 15 of JNSR 2020, the indication of such signal when the level crossing gate either open or road traffic has failed, but points where existing are correctly set for main line and locked for the route dash shall be lit. Okay, option A, both A and AG marker. Option B, only A marker. Option C, only AG marker. ऑप्शन डी, ओनली जी मार्कर. ओके, इसके हियर इधर क्लियरली मेंशन है कि लेवल क्रॉसिंग गेट ओपन है. ओके, लेवल क्रॉसिंग गेट ओपन है एंड बट पॉइंट्स एग्जिस्टिंग आर करेक्टली सेट. ओके, पॉइंट्स तो सेट है, लेवल क्रॉसिंग गेट ओपन है तो एजी मार्कर जलता है. जब भी एजी मार्कर जलता है तो लोको पायलट पहला गेट रूल फॉलो करना है. ओके, ALP नीचे उतर के गेट क्लोज करके हैंड सिग्नल दे के गाड़ी को आगे लेके जाना है और गार्ड फिर उतर के वो गेट ओपन करके रोड ट्रैफिक को क्लियरेंस देना चाहिए. और
गेट क्लियर होने के बाद फिर ऑटोमेटिक रूल फॉलो करना चाहिए। ऑटोमेटिक ऑक्यूपाइड सेक्शन है, ऑटोमेटिक रूल फॉलो करना चाहिए। पहला गेट रूल फॉलो करना, उसके बाद ऑटोमेटिक रूल फॉलो करना। अगर ये ओनली एजी मार्कर जलता उस समय में, गेट ओपन है वेयर एज पॉइंट्स करेक्टली सेट है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। As per amendment slip number 15 of JNSR 2020, the indication of such signal when points were existing or not correctly set and locked for the route or have failed, irrespective of LC gate position, lights shall be dash. Okay, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रहा है कि पॉइंट्स आर नॉट करेक्टली सेट, पॉइंट करेक्टली सेट नहीं है। ओके, उस दौरान ऑप्शन ए बोथ ए एंड एजी मार्कर, ऑप्शन बी नो मार्कर, ऑप्शन सी ओनली एजी मार्कर, ऑप्शन डी ओनली ए मार्कर। ओके, पॉइंट्स करेक्टली सेट नहीं हो रहा है बोले तो नो मार्कर। ओके, कुछ नो मार्कर लाइट पॉइंट्स ही सेट नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं ग्लो होता। ये मार्कर या एजी मार्कर दोनों नहीं ग्लो होता, नो मार्कर। इसका मतलब है ओनली पॉइंट्स सेट नहीं हो तो सिग्नल देने के बाद ही जाना है, पॉइंट सेट नहीं है तो सिग्नल नहीं आता। T369 पॉइंट सेट करके T369 3B प्लस PHS अथॉरिटी देने के बाद ही लोको पायलट गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। नो मार्कर आता है। ओके, ऑप्शन बी नो मार्कर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। As per amendment slip number 15 of JNSR 2020, the indication of such signal if both A and AG markers are extinguished. extinguished का मतलब है बुझा, ग्लोइंग है। extinguished का मतलब है बुझा हुआ है। ओके, नॉट ग्लोइंग, extinguished मीन्स नॉट ग्लोइंग, not glowing. Extinguished means signal above shall be deemed to work as dash signal. Both A and AG marker are not glowing. Option A manual stop, option B automatic stop, option C gate, option D semi automatic. ओके, ये बोथ ए एंड एजी मार्कर और नॉट ग्लोइंग बोले तो वो सिग्नल को मैनुअल स्टॉप सिग्नल जैसा ट्रीट करना चाहिए। ओके, ऑप्शन ये मैनुअल स्टॉप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। As per amendment slip number 15 of JNSR 2020, if semi-automatic signal is provided with A and AG marker, if only AG marker is glowing, follow dash rules. Only AG marker glow हो रहा बोले तो पहला गेट रूल फॉलो करना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक रूल फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन ए गेट एंड ऑटोमेटिक इज द राइट आंसर। ओके, ओनली ए मार्कर ग्लोइंग है तो ऑटोमेटिक रूल फॉलो करना। अगर एजी मार्कर ग्लोइंग है पहला गेट रूल फॉलो करना, उसके बाद ऑटोमेटिक रूल फॉलो करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये एज पर अमेंडमेंट स्लिप नंबर 15 ऑफ JNSR 2020, इफ सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल इज प्रोवाइडेड विथ ए एंड एजी मार्कर, इफ बोथ ए एंड एजी मार्कर इज ग्लोइंग, पास द सिग्नल विथ अथॉरिटी। ऑप्शन ए T369 3B, ऑप्शन बी T369 3B और टेकिंग ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट, ऑप्शन सी T/D 912, ऑप्शन डी T/C 912। अगर ए एंड ए जी बोथ आर ग्लोइंग है तो T369 3B अथॉरिटी देना चाहिए और टेकिंग ऑफ द सिग्नल ग्रीन एस्पेक्ट है तो भी पार कर सकता है। ऑप्शन बी T369 3B और टेकिंग ऑफ द सिग्नल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। As per amendment slip number 15 of JNSR 2020, if semi-automatic signal is provided with A and AG marker, if both A and AG marker is not glowing, pass the signal with authority. Both A and AG marker not glowing, pass the signal with authority. Okay, options A T/C 912, option B T369 3B or taking of signal aspect, option C T369 3B, option D T/D 912. Okay, option B T369 3B और टेकिंग ऑफ द सिग्नल एस्पेक्ट इज द राइट आंसर। अगर समझो ओनली ए मार्कर ग्लो हो रहा है, इसका मतलब है ऑटोमेटिक रूल फॉलो करना, सेक्शन ऑक्यूपाइड है, ऑटोमेटिक रूल फॉलो करना। अगर बोथ ए एंड एजी बोथ अगर एजी मार्कर ग्लो हो रहा है, एजी मार्कर ग्लो हो रहा है, इसका मतलब है गेट ओपन है एंड पॉइंट्स आर करेक्टली सेट। इसका पहला गेट रूल फॉलो करना, उसके बाद ऑटोमेटिक रूल फॉलो करना। एंड ये एंड एजी मार्कर बोथ ग्लो हो रहा है। ओके, दोनों ग्लो हो रहा है बोले तो वो सिग्नल को मैनुअल स्टॉप सिग्नल जैसा ट्रीट करना और T369 3B और टेकिंग ऑफ सिग्नल ये दोनों में कौन सा भी एक दिया तो जाना चाहिए। अगर बोथ ए एंड एजी मार्कर नॉट ग्लोइंग है फिर भी T369 3B और टेकिंग ऑफ द सिग्नल एस्पेक्ट होना चाहिए। सो ऑप्शन बी T369 3B और टेकिंग ऑफ द सिग्नल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस like floods, etc.,
or during dense fog. After passing an automatic stop signal at on, the locopilot or motorman of the train hauled by any locomotive including EMU train while moving at a speed not exceeding dash kmph shall ensure that he maintains reasonable distance at which he is able to observe the flashing tail lamp of the train ahead or the obstruction. Option A walking speed, option B 15 kmph, option C 25 kmph, option D 10 kmph. ओके जब भी फ्लड्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस लाइक फ्लड्स या ड्यूरिंग डेंस फॉग ओके ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन में पार कर रहा है तो लोको पायलट लोको पायलट 10 kmph स्पीड फॉलो करते हुए जाना चाहिए. अगर फ्लड्स ऐसा कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस आ गया तो 10 kmph में जाना चाहिए. सो ऑप्शन डी 10 kmph इज द राइट आंसर. Next question, question number 12. In automatic block system, when relief engine is expected from advanced station, during daytime protection is required, is not required. Daytime में तो protection करने का जरूरी नहीं है, but during night time protection shall be done as per option A GR 6.03, option B GR 9.10, option C both GR 6.03 and 9.10, option D none of the above. Okay. डे टाइम है तो रिलीफ इंजन आ रहा है, डे टाइम है प्रोटेक्शन करने का ज़रूरी नहीं है. अगर नाइट टाइम है तो प्रोटेक्शन करना चाहिए, वो भी प्रोटेक्शन GR 6.03 के हिसाब से करना चाहिए. GR 6.03 का मतलब एक डिटोनेटर 600 ऑब्स्ट्रक्शन से एक डिटोनेटर 600 पे लगाना चाहिए और एक डिटोनेटर और एक 600 के दूर पे लगाना चाहिए और एक डिटोनेटर 10 मीटर के दूर पे और एक डिटोनेटर 10 मीटर के दूर पे. ओके टोटल 4 डिटोनेटर यूज़ करके पहला डिटोनेटर 600 पे, दूसरा डिटोनेटर 1200 पे, तीसरा डिटोनेटर 1210 पे, फोर्थ डिटोनेटर 1220 के डिस्टेंस में लगा के 4 डिटोनेटर यूज करके रिलीफ इंजन आ रहा है तो प्रोटेक्शन करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग टेरिटरी नो पैसेंजर कैरिंग ट्रेन शैल बी अलाउड टू फॉलो अंटिल प्रीसीडेड ट्रेन रनिंग विदाउट गार्ड has arrived completely at the next dash station. Option A block station, option B halt station, option C reporting station and option D none of the above. Okay, इस क्वेश्चन का आंसर है नो पैसेंजर कैरिंग ट्रेन shall be allowed to follow until preceding train running without guard has arrived completely at the next reporting station. Okay, option C reporting station is the right answer. Question number 14. The bell code used in EMU bar DMU trains for automatic signal or IBS passing in on when telephone is defective is okay intermediate block signal. IBS means, EMU means electric multiple unit, DMU means diesel multi unit. Okay, automatic signal on automatic signal और IBS signal on में पार करते समय EMU और DMU ट्रेन्स काम करते समय लोको पायलट बेल कोड यूज़ करता है. 2 रिंग, उसका 2 रिंग्स, इसको 0 मीन्स रिंग्स बोल के बोलता है. 2 रिंग्स, 2 रिंग्स और पॉज और 2 रिंग्स. ओके, ऑप्शन सी 2 रिंग्स पॉज 2 रिंग्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. Authority to proceed for relief engine or train into an automatic block section. What is the authority form number? रिलीफ इंजन का अथॉरिटी फॉर्म क्या है बोल के पूछ रहा है. ऑप्शन ए टी बार ए 912, ऑप्शन बी टी बार बी 912, ऑप्शन सी टी बार सी 912, ऑप्शन डी टी बार डी 912. रिलीफ इंजन का अथॉरिटी है टी बार सी 912. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ड्यूरिंग थिक फॉग एंड टेम्पेस्चुअस वेदर the maximum speed of the train should be how much kmph in automatic section when train passed a automatic signal in green condition when fog signaling device provided in engine. okay, इंजन में fog signaling device है, automatic section में काम कर रहा है. automatic signal green condition, green means proceed aspect में पार किया है तो कितना स्पीड मेंटेन करना चाहिए. प्रोसीड एस्पेक्ट में फॉग सिग्नलिंग डिवाइस है तो 75 kmph स्पीड से जा सकता है. अगर फॉग सेफ्टी डिवाइस नहीं है तो प्रोसीड एस्पेक्ट में 60 kmph में जाना. अगर फॉग सिग्नलिंग डिवाइस है तो 75 kmph से लोको पायलट जा सकता है. ऑप्शन डी 75 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17.
As per SR 3.74, if any automatic signal is continuously bobbing, then LP should treat the signal as bobbing means लाइट आ रहा है फिर जा रहा है फिर आ रहा है फिर जा रहा है, ऐसा फ्लिकरिंग हो रहा है बोले तो उसको बॉबिंग बोल के बोला जाता है. ऐसा कंडीशन में लोको पायलट शुड ट्रीट द सिग्नल एज ऑप्शन ए डिफेक्टिव, ऑप्शन बी सिग्नल विल बी ट्रीटेड एज शोइंग वन येलो सिग्नल. वन येलो सिग्नल का मीनिंग है कॉशन एस्पेक्ट. फॉलो द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट शोन बाय द सिग्नल, ऑप्शन डी नन. जब भी ऐसा सिग्नल बॉबिंग हो रहा है बोले तो लोको पायलट वो सिग्नल को डिफेक्टिव माना जाता है. लोको पायलट शुड ट्रीट दैट सिग्नल एज ऑप्शन ए डिफेक्टिव. ओके, डिफेक्टिव इज द राइट आंसर. डिफेक्टिव सिग्नल में पार करना बोले तो नॉर्मल डिफेक्टिव सिग्नल स्टॉप सिग्नल में पार करना बोले तो T316 भी अथॉरिटी देना चाहिए. अगर वो ऑटोमेटिक सिग्नल है तो वो सिग्नल डिफेक्टिव मान के वेटिंग करके जा सकता है, अगर वो ऑटोमेटिक सिग्नल है तो बीच में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 18. Semi-automatic signal is protecting any level crossing gate having A and AG against black background. If A shell glowing, then it indicates that LP, that gate is option A, gate is open and points are locked. Option B, gate is closed but points are not set and locked. Option C, gates are closed and locked against road traffic and points are correctly set and locked for the road. ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. ओके, ये इफ ये शेल ग्लोइंग, ये ग्लो हो रहा है देन इट इंडिकेट्स एलपी. ओनली ये मार्कर ग्लो हो रहा है, इसका मतलब है गेट क्लोज है. ओके, ओनली ये मार्कर ग्लो हो रहा है बोले तो उसका मतलब है गेट क्लोज है एंड लॉक्ड अगेंस्ट रोड ट्रैफिक एंड पॉइंट्स आर करेक्टली सेट एंड लॉक्ड फॉर द रोड. लेकिन ऑटोमेटिक रूल्स फॉलो करना चाहिए. सो ऑप्शन सी, गेट्स आर क्लोज्ड and locked against road traffic and points are correctly set and locked for the road. Option C is the right answer. Okay, only ये मार्कर ग्लो हो रहा है बोले तो ऑटोमेटिक रूल फॉलो करना चाहिए. गेट क्लोज्ड है and it is locked for the points are also correctly set. Next question, question number 19. In automatic section, speed of the first train running with authority T bar D912 is option A 15 kmph, option B 25 bar 10 kmph, ऑप्शन सी नॉर्मल स्पीड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो. जब भी लोको पायलट फर्स्ट ट्रेन काम कर रहा है, टी बार डी अथॉरिटी के साथ फर्स्ट ट्रेन है तो 25 kmph से जाना. ओके, ऑप्शन बी 25 बार 10 kmph इज द राइट ऑप्शन. अगर विजन क्लियर है डे टाइम है तो 25 पे जाना, अगर विजन क्लियर नहीं है तो कुछ नाइट टाइम है तो 10 kmph से जा सकता है. 25 बार 10 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Stations are in auto sections or classified as dash stations. ऑटोमेटिक सेक्शंस में स्टेशंस रहता है ना, वो स्टेशंस कैसा क्लासीफाई किया जाता है? ए क्लास स्टेशन, बी क्लास स्टेशन, स्पेशल क्लास स्टेशन, नन ऑफ द अबव. ऐसा कुछ स्पेशल क्लासिफिकेशन नहीं है. ऑटोमेटिक सेक्शन में स्टेशन है तो भी उसके लिए अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है. इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ओके, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. Hope you like this video. Thank you. Thanks for watching.